की, डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की। त्रैलोक्य संपदालैक्य ಸಮುಲ್ಲೇಖನ ಭಿತ್ತಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಜನ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ನೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಮಂಡಲಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ತ್ರಿಕಾಲ ಶಿವಪೂಜಾ ನಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಲಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 41 ದಿನಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಡಲಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಹಿರೇಮಠದ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರೇ, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಪೂಜನಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದರಿಂದ
ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುರುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜನಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ. ಒಂದು ಮಂಡಲಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಶ್ರೀಗಳ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನದವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಪಾದೋದಕ ಸ್ವೀಕಾರ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊಣರುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹೈನುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಪ್ಪವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರಡು ಹಸು ಕೂಡ ಹೈನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವದಯ್ಯ, ಗುರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಂಡಲಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕಾಶಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗುರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥವನೇ ಗುರು. ಶಿವಪಥವ ನರುವಡೆಯ ಗುರುಪಥವೇ ಮದುವೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭರ್ಗೋ ನರಾಕೃತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುರು ನರರೂಪದಿಂದ ಶಿವರೂಪನಾಗಿ ಬಂದು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರೊಂದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಂದ್ರೇ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಂದ್ರೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಚನಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಒಂದು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಿವಂಬ್ಯ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿರೇಮಠ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಮಠ ದೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಉಭಯ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿರೇಮಠ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसके पश्चात ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಠ ದೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसके पश्चात श्री शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा सिद्धांत शिखामणि के ऊपर
श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर, गुरु कारुण्य स्थल के ऊपर प्रवचन प्रारंभ होगा। आप सभी लोग शांति चित्त से बैठ जाइए। ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೆ ಮರಾಠಿ ಕೂಚಂಡಿ ओम नमः पंच जगद्गुरुभ्यः। पंचाशोधनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरुन् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुन् त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समल्लेखनभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाः सर्वलोकानां प्रकृतं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां। इस पीठ के पूर्व जगतगुरु श्रीमद जगतगुरु श्री 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 1008 श्रीमद जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी, इनका 105वां जन्मदिनोत्सव, वैसे ही उसके साथ साथ वर्तमान जगतगुरु जी का जन्म अमृत महोत्सव और अपना भारत देश का अमृत महोत्सव और जगतगुरु पट्टाधिकार महोत्सव, इन सारे कार्यक्रम का उपलक्ष्य में जो मंडल दिन पर्यंत चल रही इस सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन का शुभ संध्या में आज विशेष रूप से मदर्स डे, माताओं का दिन, आज हम लोग अभी तक उस कार्यक्रम का साझा किए। इस कार्यक्रम में इस व्यासपीठ पर सिंहासनारूढ़ इस पीठ के पीठाधिपति श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर भगवत पादंगल, इनका चरणारविंद पर अनंत दीर्घन प्रणाम समर्पण करते हुए और इस व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री शटस्थल परमी प्रभु पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के लेकर सभी शिवाचार्य गणों को नतमस्तक होते हुए और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे ढंग से मदर्स डे का कार्यक्रम जो करवा के अभी शायद इधर नहीं है, सभी माता भगिनों
और इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे आयुष्मान शिवलिंग देवर जी और सभी साधक वृंद और इस कार्यक्रम का इस सभा के सामने उपस्थित हुए सभी शादनगर के और बिस्नड़ के सभी विद्यार्थीगण और प्राध्यापक और अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए अन्य अन्य राज्यों से आए हुए सभी माता भगिनों भक्त भक्त, आज हम लोग क्योंकि कल भी सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि लास्ट तक भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोज रोज अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग शिवाचार्यों से धर्म संदेश वगैरह हम लोगों का सुनने के लिए नहीं, उनको भी बोलने के लिए मौका देना चाहिए। इसी के वास्ते थोड़ा बहुत एक श्लोक लेकर आज का कार्यक्रम के बारे में हम बता सकते हैं। उपैति लोक विख्यातम लोभ मोह विवर्जितम आत्मतत्व विचारज्ञम विमुक्त विषय भ्रमम। इसका बारे में अभी बोलना है तो 1 घंटा चाहिए, क्योंकि कल से मैं तैयार करके बैठा हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहे हैं। इसी के लिए जो महासमिति का आदेश अभी मतलब इस प्रवचन के बारे में न बताते हुए आज हम लोग जो मदर्स डे, आज बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि 1 महीना में ऐसे कार्यक्रम पुरुषों ने किए होंगे, क्योंकि तेलंगाना से जो लोग आए हुए थे उस समय उस दिन बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम करके दिखाया, पुरुषों का था। लेकिन आज विशेष रूप से महिलाओं का जो कार्यक्रम हम लोगों को देखने मिले, वो भी सोलापुर से आकर उन्होंने हर एक उनमें क्या क्या कला है उन्होंने हम लोगों को सामने उनका कला का जो प्रदर्शन किए। ऐसा लग रहा था कि आज तो हम लग रहा था कि लास्ट तक मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो ले लिए और 1 घंटा लेगा तो पूर्ण सभा ही खत्म होते थे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हम लोगों को जब सोलापुर में थे उस समय में अपना हिरेमठ भाई तालीकोटी मैडम ने आकर हमको पूछा थे कि कार्यक्रम करना है हमको उधर, क्योंकि संकल्प सिद्धिया अपना कार्यक्रम तपोरत्तम योगीराजेंद्र शिवाचार्य जब MID मठ का उद्घाटन का कार्यक्रम में अपना पट्टाभिषेक महोत्सव में उस समय में भी तपोरत्तम योगीराजेंद्र शिवाचार्य जी ने एक महिला कार्यक्रम होना करके उनको मौका दिए थे एक कार्यक्रम करने के लिए। वो भी शायद मई मास में ही थे, उसमें शायद महिला दिन था क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आज विशेष करके मदर्स डे उन्हीं का दिन है। हम लोग जो पाश्चिमात्यों ने 1905 से ये जो मदर्स डे बनाने का जो तय कर तब से लेकर अभी तक मतलब पूर्ण दिन किसी ना किसी का दिन रहते, लेकिन जो माताओं का दिन एक दिन होना चाहिए और पिताओं का दिन एक दिन होना चाहिए करके अलग अलग, या बच्चों का भी एक दिन होना चाहिए, ऐसे अलग अलग तारीख है। लेकिन आज तारीख कितनी? 8 मई का जो दिन मदर्स डे करके बना रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सिर्फ एक दिन मदर्स का दिन नहीं है, सिर्फ एक दिन मदर्स का दिन नहीं है, हर दिन ही मदर्स का दिन है, हर दिन ही माताओं का दिन है। क्योंकि माता हर दिन घर पे उठते ही उनको देखते ही हम लोग वही संस्कार सिखाने वाली रहती है, वही बच्चों को पढ़ाने सिखाने सब कुछ करने वाली माता तो रहती है, पिता तो कुछ नहीं करते। पिता तो सिर्फ अगर आएंगे तो जाओ उधर तुम्हारे माँ है उसके पास जाओ, मेरे को सिर मत खाओ उधर जाओ, ऐसे पिताजी ने भेज देते हैं। लेकिन बच्चों का लालना पालना जो भी हो, उनका संस्कार डालना उनको ऊपर, जो भी काम
वो मदर्स ही करते हैं, माता ही करते हैं। लेकिन माता का जो कार्य एक दिन भी रजा नहीं है। जैसे अभी हम लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो भी ऑफिसर वर्कर इधर रहेंगे तो उनको पूछ लीजिए संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। वो ध्यान में मतलब जब करते रहते हैं संडे कब आएगा। संडे मतलब जानते हैं ना, रविवार, मतलब रजा का दिन कब आएगा। वो काम करते लेकिन रजा का दिन देखते देखते काम करते रहते हैं। लेकिन माता ऐसे नहीं है। माता का रजा का दिन है क्या? माता ऐसे है कि 24/7 और उसके साथ साथ इंटू 30, ऐसे हम कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। इंटू 30 नहीं है, आयुष भर उनका ड्यूटी है। वो बिन पगार लेते हुए, हम लोग तो पगार लेके ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन घर में वो पगार का याचन करती है क्या? नहीं है। अगर मान लीजिए पिता से भी थोड़ा बहुत पैसे लेंगे तो भी वो खुद के लिए नहीं लेती है, वो छुपा के रखती है। किसके लिए? वो अपना बेटी के लिए। आगे जाकर बेटी की शादी करना है तो तब पैसा चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई माता पुरुष से, मतलब अपना पति से सोना वगैरह मांगे तो वो खुद के लिए नहीं मांगती। वो सोना अभी सस्ता में अभी लेकर रख लो, आगे जाके काम में आएगा। कब काम में आएगा? बेटी के शादी के वक्त काम में आएगा। वो खुद के लिए या खुद आइश करने के लिए सोना नहीं मांगते। कोई भी इधर पिताजी बंधु इधर है तो उन लोग ध्यान में रखिए, कोई भी वो चीज करती तो अपना बेटियों के लिए करते, अपना आगे जाकर अपना बच्चों के लिए तो खरीद के रखते, न कि खुद के लिए। आज इधर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कार्यक्रम करके दिखाया। उसके साथ साथ संस्कार के बारे में, उसके साथ साथ गुरु जी के बारे में, गुरु का महिमा के बारे में। और मेरा आजकल जो माता हैं उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से सिखाए, कोई बात नहीं, लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट में सिखाना है ये ध्यान में रख के सिखाइए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अनुभव रहा हूँ। मतलब अपना स्कूल में, अपना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ब्रह्मटवटी के संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ हर वक्त मैं जाता रहता हूँ। कभी कभी जाता रहता हूँ कि बच्चों का कार्यक्रम में भी मैं भाग लेता रहता हूँ। वहाँ हम लोग अपना हिंदू धर्म का जो भी संस्कार है वो बच्चों को सिखाते रहते हैं। अलग से देशी शिक्षण हम लोग देते रहते हैं। इस शिक्षण के साथ साथ देशी शिक्षण देना जरूरी है। क्योंकि अभी एक माता बोल रहे थे बोलते बोलते, क्योंकि वहाँ ऐसे कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ बिल्कुल अपना हिंदू धर्म के बारे में मान लो या अपना कोई भी भगवान के बारे में मान लो, वो लोग आचरण करने नहीं देते। ऐसे स्कूल में आपको बच्चों को मैं विनम्र रूप से कहता हूँ उधर मत भेजिए। क्योंकि शिक्षण सीखना है तो कहीं भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन संस्कार मेन जरूरी है। आप लोग बच्चों को ऊपर संस्कार डालिए। और एक है कि आजकल जो माताएं हैं बच्चों से, मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मार मार के बुलाती है, नहीं मेरे को मम्मी बोलो, मेरे को मम्मी बोलो। अगर वो बेटा अम्मा बोलेंगे तो और एक थप्पड़ मारती है, नहीं मम्मी बोलेंगे तो ये दूंगी, हाथ में कुछ पकड़ के रहते, मम्मी बोलेंगे तो दूंगी। क्यों? मम्मी शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी का मतलब क्या होते है वो समझ लीजिए आप। मम्मी का मतलब है, इजिप्ट में जो डेड बॉडी को हम मम्मी बोलते हैं, मतलब आप जिंदा है क्यों डेड बॉडी बनने चाहते हो? आप जिंदा होकर बच्चों से डेड बॉडी का जो भी हम देहांत होने के बाद हम बोलते उस भाषा में मम्मी बोलते। लेकिन अगर मदर या अम्मा, कोई माता, कोई पुराना शब्द अगर आप लोगों को लग रहे तो मैया आप बुला सकती है, 2 शब्द में मैया। क्योंकि कृष्ण भगवान ने मैया करके ही बुलाते थे, पुकारते थे अपना मातों। मैया भी आप बुला सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी शब्द एक संस्कार उधर निर्माण होती है। आजकल अभी एक माता का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो भी लिखकर आई थी, लेकिन मैं उन माताओं को यही कहता हूँ कि सिर्फ बोलने के लिए लिख के मत आइए, अपना आचरण में लाइए।
अपना घर पे आचरण में लाइए, तभी तो वो संस्कार बढ़ेगी। वो बोल रहे थे पाश्चिमात्य लोग संस्कृत अपना रहे हैं, लेकिन अपना भारतीय जो भी है संस्कृत को छोड़कर उनका अपना रहे। इसलिए उनको, उन माता भगिनों को यही कहना चाहता हूँ कि अपना जैसे जो भी शिवाचार्य जी का संस्था हो उनमें आप लोग एडमिशन करेंगे तो पैसा कम ही रहते हैं। हम लोग पैसे कम ही रखे, गुरु जी तो बोलते पैसा मत ले, लेकिन पेमेंट करना है तो पैसे लेना पड़ता है। लेकिन उन वहाँ अलग तरह से एक वेगड़ा, मतलब एक अलग तरह से उनका संस्कार देते रहते। देशी शिक्षण जाना जरूरी है। आजकल तो अभी शिक्षण पद्धति में चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो ना बहुत जरूरी है। जो भी हम लोग अभी सीख रहे हैं ये मेखलिन पद्धति शिक्षण पद्धति है, इसका छोड़कर अपना देशीय पद्धति शिक्षण को हम लोग सीखना चाहिए। ऐसे आप लोग घर पे जो भी अपना जो दिनचर्या है वही बच्चों का संस्कार है। जो भी हम लोग, जो अतिथि लोग आएंगे तो उनका मान सम्मान बच्चों के सामने करना चाहिए। कोई आपका मान लीजिए दुश्मन भी आएंगे तो उनको बुला के मान सम्मान करना चाहिए, तभी तो बच्चों के ऊपर अच्छा संस्कार पड़ेगा। अभी ज्वाइंट फैमिली जो भी बोल रही थी माता जी ने, लेकिन मैं तो उसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग जो भी बुजुर्ग सासू माँ या घर पे ससुर है, उनको अच्छे तरह से सेवा वगैरह करेंगे तो वही बच्चों को ऊपर संस्कार पड़ेगा। आगे जाकर आप लोग बुजुर्ग अवस्था में आएंगे तब जाकर आपका बच्चा आपको सेवा करेगा, नहीं तो कभी नहीं करे, कदापि नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग जो भी उनको बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, आजकल बच्चों का बोल के रट्ठा मार कर जरूरत नहीं है। जो भी हम लोग आचरण करेंगे वही संस्कार वो ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके आगे जाकर अपने ऊपर वो प्रहार करेंगे। इसलिए आप लोग आज का जो भी कार्यक्रम है बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने कार्यक्रम करके हम लोगों को हमको भी सीखना, जो भी बात है हम लोग, क्योंकि माता है उनसे हम लोग भी सीखना चाहिए। क्योंकि हमका गुरु स्थान में जो बैठा है वही माता ने बैठा है, हम लोग वही उनसे बहुत सारे सीखने के लिए आज मिले। और आगे जाकर मेरे ख्याल से वीरगासी और भी उनका माइक इधर उधर हो रहे थे, लेकिन तलवार वगैरह हुए तो मैं तो लगता है किसी को मार लेती थी। ऐसे बागलकोटे जी ताई ने, क्योंकि बागलकोटे गैरेज वाले शायद होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा तरह से कार्यक्रम करके दिखाए। और ये सब श्रेय सभी माताओं को जाएंगे। उसके साथ साथ अपना तालीकोट मैडम्स को भी, उन लोगों को, सभी लोगों को बुलाकर यहाँ आकर इतना दूर, मतलब 1-1.5 किलोमीटर यहाँ आकर, क्योंकि वोटिंग मठ में करना है तो वहाँ नज़दीक में रहते हैं, बहुत लोगों को ले आके करते, लेकिन इतना दूर ले आके करने का जो भी श्रेयस है वो तालीकोट मैडम को जाएंगे। और ऐसे ऐसे साथ साथ आज जितना भी शिवाचार्य बहुत संतुष्ट हुए, सब कार्यक्रम देखकर आपका कार्यक्रम देखकर बहुत संतुष्ट होकर, मतलब हंसना भी ऐसे किया और इसके साथ सीखने भी ऐसे बहुत अच्छे मिले। आप सभी आज मदर्स डे सिर्फ आज के वास्ते नहीं करते हुए हर वक्त माताओं को मान सम्मान हर वक्त अपना देश में मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों ने ऐसे हम लोगों को सिखाया। आगे भी जाकर हम लोग बच्चों को भी ऐसे सिखाना है। यही मैं 2 शब्द मेरा जो 2 वाक पुष्पों को सन्निधियों का चरणारविंद समर्पण करके रमाम। ओम शांति शांति शांति। अपना धर्म संदेश में भारत का संस्कृति के बारे में और स्त्रियों के बारे में, उनका स्थान कैसे रहना है, विशेष रूप से देखा जाए तो भारत देश में ही स्त्री को उन्नत स्थान और समान स्थान मान दिए गए। ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ अभी वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी से आशीर्वचन प्रारंभ होगा। सभी लोग शांत चित्त से बैठ के विश्वविद्या विबोधकम
विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के पवित्र धर्म सभा में मातृ दिवस के बारे में अपना धर्म संदेश दिए हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी आज सभा में उपस्थित सभी शिवाचार्यों के तरफ से अपना धर्म संदेश दिए हुए षटस्थल ब्रह्म रेवण सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी, कल प्रस्थान करने वाले पाश्चापुर दोरणहळ्ळी के स्वामी जी, उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, मातृ दिवस के शुभ संदर्भ में अतिशय सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हुए सोलापुर के सभी माताओं, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, काशी महापीठ में 41 दिन का जो मंडल कार्यक्रम चल रहा है उसमें अलग अलग प्रांतों के भक्तगण विविध कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेलंगाना के अवधानी विद्वानगण बहुत सुंदर ढंग से तेलुगु भाषा में अपना कार्यक्रम प्रदान करके सभी को आनंद और आश्चर्य होने जैसे कार्यक्रम किए थे। आज लिंगैक्य तपोरत्नम योगी राजेंद्र शिवाचार्य स्वामी जी की प्रेरणा से सोलापुर में स्थापित महिला मंडल के द्वारा योगा योग जो है मातृ दिन के ही शुभ दिवस पर उनका अतिशय सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है। वेद मंत्रों का जो घनपाठ करना है, घनपाठी विद्वानों को जल्दी नहीं आता। इधर हमारे संगय शास्त्री बैठा है, हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री है, हमारे बार्शी के दैवड़ कर्मठ के मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी है। ये हमारे धर्म के वेद विद्वान लोग जैसे वेद मंत्रों का घनपाठ करते हैं, वैसे सोलापुर के श्रीमती लता ताड़ीकोटी इन्होंने इतना सुंदर ढंग से घनपाठ किया, हमें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी प्रयत्न करने से असाध्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य को
लगन से प्रयत्न करने से भगवान की कृपा हो जाती है। आलसी व्यक्तियों के ऊपर किसी की कृपा न गुरु की कृपा होती है न भगवान की कृपा होती है। लेकिन जो यत्नशील होता है, प्रयत्नवादी होता है, उसके लिए भगवान अपने अनंत हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे तालिकोटी माता जी का जो घनपाठ हम लोगों ने सुना, उनका प्रयत्न गुरु का आशीर्वाद सफल हुआ है, ऐसे कहने में हमें अत्यंत आनंद होता है। उन्होंने सोलापुर के अनेक माताओं को रुद्र सिखा करके बहुत बड़ा महिलाओं का रुद्र संघ स्थापित किया है। आज प्रातः काल की पूजा में हमारे वैदिक विद्यार्थियों के साथ उन्होंने सुंदर रुद्र पठन करके अपना रुद्र भक्ति प्रदर्शन किया है। दूसरी बात, बहुत से महिलाएं अध्यात्म के बारे में, गुरु के बारे में विविध विषयों पर हिंदी में प्रवचन किया। ये आश्चर्य है। यहाँ के लोगों को जल्दी हिंदी बोलने नहीं आता, लेकिन सुदूर महाराष्ट्र से आकर के और सुंदर ढंग से हिंदी में आप लोगों ने अपना अपना विषय प्रस्तुत किया है। सचमुच आपका प्रयत्न जो है सफल हुआ है। अंत में एक माताजी कहाँ के बागलकोट है, जो वीरगासी का वीरभद्र का वचन उन्होंने सुनाया, उसमें वचनों को लेकर के उनको मैं स्त्री हूं इसका भान ही नहीं था। वो वीरभद्र का आवेश जिस किसी के अंग में आ जाता है सब भूल जाता है आदमी। वैसे पूरा बदन पर रुद्राक्ष माला धारण करके, सिर पर भगवा पेटा बांध करके, त्रिशूल धारणा करके उन्होंने वीरभद्र का जो वचनों का व्याख्यान किया, सचमुच जितने लोग भी देखे होंगे फेसबुक के माध्यम से, सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ है और सभी के मन में एक प्रेरणा हो गई होगी, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। वैसे तो वीर शैव धर्म में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया है, तो एक को देख करके एक, ऐसे आप लोग भी ऐसे पारंपरिक धर्मानुष्ठानों को आचरण में लाने के लिए आप खुद प्रयत्न कीजिए। आपके घर में जो नई पीढ़ी है, डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य ने जो बताया, बच्चों को केवल शाला के शिक्षण देना मुख्य नहीं है, अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी आचरण सिखाना अत्यंत आवश्यक है। वैसे आज का जो मातृदिन के उपलक्ष्य में जितने भी माताओं ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उससे हम प्रसन्न हैं, विश्वाराध्य प्रसन्न है, काशी विश्वनाथ भी आप सबके ऊपर प्रसन्न है। इसी प्रकार आपकी प्रतिभा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसे हम मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। साल में एक दिन मातृदिन करने का जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा नहीं। महाराज जी ने बताया, एक दिन से मातृदिन नहीं होता है। हमारे जिंदगी में जितने भी दिन आते हैं, आयुष्य का जितने भी दिन हैं,
उन सभी दिनों को मातृदिन के रूप में मनाने पर भी माता के ऋण से हम कोई ऋणी नहीं हो सकते, क्योंकि सुभाषितकार कहता है मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण। हमारे शरीर के भरण पोषण करने में माता का जितना योगदान है उतना संसार में किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए माता है करके हम लोग इतने बड़े हो गए, माता नहीं रहते तो हम कभी भी चले जा सकते थे। इसलिए एक दिन मातृदिन करने की परंपरा हमारे नहीं है। इसलिए कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे घर में भगवान माता के रूप में, पिता के रूप में प्रत्यक्ष है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान कहाँ दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई नहीं देता है, भगवान नहीं, ऐसे बोलने वाले हैं। लेकिन खुद भगवान वेद में कहा है तुमको देखने के लिए, तुमको स्पर्श करने के लिए, तुमको पूजा करने के लिए, तुमको गौरव करने के लिए माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अतिथि के रूप में मैं प्रत्यक्ष हूँ। हम लोग जो काशी रामेश्वर यात्रा करते हैं वैसे तो ठीक है, लेकिन घर में ही काशी रामेश्वर रहते हैं। हमारी माता जो काशी है, पिता जो है रामेश्वर है। घर में रहने वाले माता पिता उनको तिरस्कार करके तुम कितने बार काशी यात्रा करो, कितने बार रामेश्वर की यात्रा करो, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमारे संस्कृति में कहा गया है यदि घर में माता हो, माता की काशी यात्रा नहीं हुई हो, ऐसी माता को घर में छोड़ करके यदि कोई काशी यात्रा आता उसका कोई फल नहीं मिलता। पहले जमाने में माता पिताओं को यात्रा कराने के लिए काशी आते थे, रामेश्वरम जाते थे। इसलिए इस तथ्य को समझ करके उतनी ही श्रद्धा से आचरण करने से जितना आशीर्वाद माँ हमारे ऊपर दे सकते हैं, जितना आशीर्वाद पिता दे सकता, उतना साक्षात भगवान भी नहीं दे सकता। आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी उनको कोई शुभ दिवस होता माँ के पास जा करके आशीर्वाद लेता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए इतना प्रयत्न करते रहते हैं। पिताजी का देहावसान होने पर भी वो अंत्य विधि में नहीं जा पाए। उनको मन में एक ग्लानि थी, पिता के अंत्यक्रम में नहीं गया, लेकिन उनके जो कार्य क्षेत्र के दृष्टि से नहीं जाने से कोई अपराध नहीं माना जाता है। फिर भी 5 साल तक उन्होंने पिताजी का वियोग होने के बाद माताजी का भी दर्शन नहीं कर पाए थे। जब दोबारा मुख्यमंत्री हो गए तब जा करके माताजी का आशीर्वाद लिया है। इसलिए सन्यासी होने पर भी सन्यासी को पिता को नमस्कार करने के लिए मना किया, लेकिन माता को नमस्कार करने को कहा गया है। इसलिए शंकराचार्य एकलौता पुत्र थे अपने माँ के लिए। पिताजी पहले मर गया था। इनके मन में बाल्यकाल में सन्यास होने की इच्छा हो गई। उन्होंने कुछ नाटक रचाया,
नदी में मगरमच्छ पकड़ा जैसे दृश्य दिखाया, माता जी से अनुमति लेकर के संन्यास लिया। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, यदि ब्रह्मचारी बेटा संन्यास होना चाहता है तो माता की अनुमति चाहिए। यदि कोई गृहस्थ शादीशुदा व्यक्ति संन्यास होना चाहता है तो पत्नी की अनुमति चाहिए। तब इन्होंने माता के द्वारा अनुमति लेकर के संन्यास लिया। केवल 8 वर्ष में 4 वेदों का अध्ययन किया। 16वें वर्ष में वो मुनि कहने लगे। जब उन्होंने घर छोड़ के जाने लगा, माता जी ने कहा उनसे, बेटा तुम अकेले मेरा पुत्र हो, तुम एक बार संन्यास लेके जाओगे तो घर वापस नहीं आ सकते, तो मेरा अंत्य विधि कौन करेगा? तब शंकराचार्य कहते हैं, तो मैं अकेला हूं इसलिए मैं संन्यास होने के बावजूद आऊंगा, केवल अंतिम समय में मेरा स्मरण करो। वैसे ही हुआ। माता जी स्मरण किया। सुदूर देश से आकर के शंकराचार्य जब घर में आए, तत्कालीन सांप्रदायिक जो लोग थे, संन्यास लेने के बाद घर वापस आना अपराध मान करके उनके माता जी के अंत्य विधि में किसी ने सहकार नहीं किया। कम से कम माता जी के पार्थिव शरीर को स्मशान घाट तक ले जाने के लिए कम से कम 4 आदमी तो चाहिए, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। तब शंकराचार्य ने घर के लकड़ी निकाल करके घर में ही चिता लगा करके माता का अंत्य विधि किया। अर्थात सन्यासी होने के बावजूद माता को अंतिम श्रद्धा समर्पित करने के लिए शंकराचार्य उपस्थित होकर के सभी सन्यासियों को एक पाठ पढ़ाया है। तुम सन्यासी होने पर भी तुम्हारे लिए माता वंदनीय होती है, ऐसे उन्होंने दिखाया है। ऐसे आज मातृदिन है। बहुत से लोग की माता स्वर्गस्थ हो गई होगी, लेकिन जिस व्यक्ति के भी माता अभी जीवित है वही भाग्यशाली हम मानते हैं। इसलिए उन माताओं को आप अनादर मत करो, उनको गौरव करो। साक्षात भगवान माता मान करके उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस उद्देश्य से आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सोलापुर के सभी माताएं जो अपना विविध गाना, वेद मंत्र, वीरगासी नृत्य और भाषण आदि अनेक कार्यक्रमों को दे करके सचमुच मातृ दिन का आचरण जंगमवाड़ी मठ आज हुआ तो आप लोगों के वजह संपन्न हुआ है। इसलिए आप सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज की सेवा में हमारे पुणे के दिगंबर स्वामी और सुभाष चौक वाले और हमारे सिद्धि मल्लैया के परिवार के लोगों ने जो संपूर्ण सेवा किया है, उन सभी लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद तुलाभार की सेवा होगी। कल की पूजा में जिसके भी पूजा हो, ऐसा नहीं सबको उसमें पूजा में प्रवेश होता है। 8:30 बजे से पहले आप गंगा स्नान करके शुभ्र स्वस्थ वस्त्र पहन करके इसलिए पूजा में सब लोग भाग लें। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जन्म अमृत महोत्सव
तथा श्रावण मास के अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी से विनती है कि महास्वामी जी की लंबी आयु की कामना करने हेतु सभी कार्यक्रम में सम्मिलित हो और माता उदय महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कर महास्वामी जी का जन्म अमृत महोत्सव सफल करने के साथ साथ अपना गुरु श्री चंद्रशेखर शिवगे निज सुख सागर करुणाकर श्री चरवर पर तरिगे स्वामी चरवर पर तरिगे शिष्यर पाशव हरियुव शिष्यर पाशव हरियुव शुभ कर गुरुवर गे ओम जय जगद्गुरुवर गे ओम जय जगद्गुरुवर गे नित्य मंगल मूर्ति गे मंगल दारुति बेळगे मंगल दारुति बेळगे काशीपुरेशनिगे ओम जय जगद्गुरुवर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् जय मंगलम जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की श्रीमद्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर